students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some types of switches. So in computer networking we have a variety of switches, right? But we use mainly 4 types, okay? We use only mainly 4 types, right? So let's start with the first point. First type is unmanaged switches. Okay, next is managed switches. Third type is LAN. LAN stands for local area network switch. Sorry, this is switches, okay. Next type is PoE switch. So PoE stands for power over Ethernet. Okay, these are the majorly used type of switches, right? Next point is edge, or we can say it as access switch. Next point is aggregation, or also known as distributed switch, right? Next point is core switches. Next point is KVM, and the last type is smart switches. Okay, so all these are the major types of switches, but generally we use only these 4 types. Okay, so we will discuss all these types of switches in detail. So let's start with the first type, that is unmanaged switches. So unmanaged switches are inexpensive. These are inexpensive, commonly used in home networks. Okay, generally used in home networks, or we can say that small businesses. ओके अभी तक हम लोगों ने स्विचेस के बारे में जितना भी डिस्कस किया था वो मेनली यही था कि स्विचेस जो हैं वो स्मॉल नेटवर्क के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. सो जो स्मॉल नेटवर्क के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए या होम नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, those switches are known as unmanaged switches. Okay, they can be set up by simply plugging into the network, after which they instantly start operating. ठीक है, इसमें सिंपल हमें प्लग इन करना होता है, अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना होता है स्विचेस को, एंड वो जो है ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो व्हेन मोर डिवाइसेस नीड टू बी एडेड, मोर स्विचेस आर सिंपली एडेड बाय दिस प्लग एंड प्ले मेथड. यू हैव टू रिमेंबर दैट इट ऑलवेज फॉलो plug and play method. Okay, this is very important statement, or we can say that this is the key word. Whenever we talk about plug and play method, that means we are talking about unmanaged systems. Okay, they are referred to as unmanaged because they do not require to be configured. Okay, they do not require to be configured or monitored. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दैट, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि हम लोग छोटे लेवल पे यूज़ कर रहे हैं स्विचेस को, एंड जितना छोटे लेवल पे काम हो रहा होगा उतना इजी उसे मैनेज करना होता है, ठीक है. सो अगर जैसे हम लोगों ने लैन में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं. अब जैसे 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो इन 3 कंप्यूटर्स को मैनेज करना, उन्हें सेटअप करना बहुत ईजी होगा कंपेरेटिवली अगर हम लोग 20-25 कंप्यूटर्स या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स या कोई भी सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, उनको मैनेज करना, कन्फिगर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है. सो वही चीज़ है यहाँ पे अनमैनेज्ड. ओके, इसके नेम से ही देख लीजिए आधी से ज़्यादा बातें क्लियर हो चुकी हैं. ओके, सो सेकेंड टाइप इज मैनेज्ड स्विच. ओके, so these are costly switches that are used in organizations with large and complex network. These are used for large and complex network because they can be customized to set the functionalities of a standard switch. Okay, these are used for large and complex networks because they require customization. Okay, so this feature may be QoS,
This feature may be what? QoS. QoS stands for quality of service. Okay, like higher security levels, better precision control and complete network management is always required. Okay, complete management is always required in case of managed switches. Okay, they are very costly क्योंकि ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में यूज होते हैं. सो जो नेटवर्क लार्ज है यानी कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है, एंड जितने ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होंगे एंड उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा नेटवर्क होगा. दैट्स वाई इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली और इट रिक्वायर्ड कंप्लीट मॉनिटरिंग. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंप्लीट मॉनिटरिंग चाहिए होती है अगर हम लोग अपने नेटवर्क को स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमें हमेशा मैनेजमेंट करनी ही पड़ती है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लैन स्विच. LAN switch. Okay, LAN stands for local area network as its name implies. जहाँ पे LAN आ गया इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है, ये स्विचेस जो हैं वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते. ठीक है, इसका जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा ही होगा. सो LAN switches connect devices in the internal LAN of an organization. Connects in the internal LAN of any organization. Okay, they are also referred as Ethernet switches. They are also known as Ethernet switches. Ethernet switches or data switches. Okay, remember these names. LAN switches are also known as Ethernet switches and data switches. Okay, these switches are particularly helpful in reducing network congestion. It will reduce network congestion or we can say that bottlenecks, right? Congestion क्या होता है? अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से पैकेट जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो बीच में अगर हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं तो कंजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, डेटा यहाँ से भी आ रहा है, डेटा यहाँ से भी आ रहा है, एंड क्योंकि अगर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स, उतने ज़्यादा नोड्स जो होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, हमारा नेटवर्क उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, सो LAN स्विचेस में क्या होता है, कम हम लोग सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया था कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉलेज की एक बिल्डिंग है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह का नेटवर्क होता है जहाँ पे मिनिमम 20 to 25 या इतने से कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं. सो वहाँ पे हम लोग LAN स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ पे हम लोग अनमैनेज्ड स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो जितने कम सिस्टम्स होंगे कंजेशन जो होगा उतना कम होगा. ओके, सो दे एलोकेट बैंडविड्थ इन अ मैनर सो दैट देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ डेटा. ओके, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ डेटा पैकेट्स इन अ नेटवर्क. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, बैंडविड्थ प्रॉपर एलोकेट करवाता है हर एक डिवाइस को. जैसे ये सेंडर है, ये रिसीवर्स हैं, सो यहाँ पे सबकी बैंडविड्थ जो होगी वो इक्वल प्रोवाइड करवाएगा. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग कम होती है एंड नेटवर्क कंजेशन भी रिड्यूस हो जाता है. So this is about the basic 3 types of switches in computer networking, and in the next video we will discuss another types. I hope you understand. Thank you.